ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، شاہ محمود قریشی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ شاید کوئی نہ کر سکے، وہ تبدیلی کا ایک کیٹلسٹ ہوتی ہے ماں بیٹی، اور اگر پڑھی لکھی ہو، پڑھاؤ ہو، تو وہ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور معاشرے کی تبدیلی کے اصلاح میں اس کا کردار بڑا واضح ہو سکتا ہے۔ آج پاکستان کی کیفیت کیا ہے؟ آج میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ کس کیا ہے؟ کیمرہ کیسے ریسٹارٹ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب شہری کے ساتھ حکومت کی تو تیل کی جو بین الاقوامی قیمت تھی وہ $105 کی بیرل، اور ہم نے لوگوں پہ بوجھ کم سے کم کرنے کے لیے ہم نے سبسڈیز بھی دی، اور ہمارے وقت میں جب ہماری گورنمنٹ گئی تو پیٹرول کی قیمت تھی $150 لیٹر، ڈیزل کی قیمت تھی $145 لیٹر۔ آج جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، نون کی اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ، بین الاقوامی تیل کی قیمت گر چکی ہے، $105 سے گر کر $95 ہو گئی ہے، اور پیٹرول کی قیمت ہے $227 لیٹر، اور ڈیزل کی قیمت ہے $244 فی لیٹر۔ ابھی تو خیر میں گئی، اور بات کیا ختم نہیں ہوتی۔ جو اس حکومت نے عوام پر ایک ظلم کیا ہے اور اس کا ابھی ذکر نہیں کیا IMF کے معاہدے میں، یہ ان کو ایک لکھ کر انڈر رائٹنگ دے کر آئے ہیں کہ ہر ماہ ہم پیٹرول کی لیوی میں $10 فی لیٹر اضافہ کریں گے، اور اب مزید $50 فی لیٹر انہوں نے اضافہ کرنا ہے تیل کی قیمت میں، یعنی کہ $10 فی ماہ۔ تو اگلے 5 ماہ جو لیوی ہے پیٹرول کی، اس میں اضافہ ہوگا، اور اس کا امپیکٹ جو ہمارے زرعی سیکٹر پر ہوگا، اور جو اس وقت زراعت پر جو منفی اثر ہو رہا ہے ڈیزل کی قیمت کا، وہ ایک کسان جانتا ہے، وہ ایک کاشتکار جانتا ہے۔ انٹرنیشنل قیمت گر گئی، اور یہ جو سو کالڈ عوام کے محافظ بنے بیٹھے ہیں میڈیا کی لیڈرشپ، انہوں نے $9 فی لیٹر تیل بڑھا دیا، انہوں نے $4.62 فی لیٹر مٹی کے تیل میں اضافہ کر دیا۔ یہ ایک مہنگائی کی شرح جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کا بھی ہر پاکستانی کو احساس ہے۔ میں حیران ہوا سن کر مفتاح اسماعیل صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ میں مہنگائی کم کرنے کے لیے نہیں آیا، مہنگائی کم کرنا میری ترجیح نہیں ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا میری ترجیح ہے۔ سوال یہ ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنا کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ تو جب تشریف لائے تھے، اور ہمارے حکومت میں، ان کی حکومت پی ڈی ایم میں حکومت میں آنے سے پہلے ان کا تو یہ ایک بیانیہ تھا کہ ساری مہنگائی کی وجہ تحریک انصاف کی نہ تجربہ کار حکومت ہے۔ اب سب تجربہ کار کیا ہو گئے، اور سب اپنا تجربہ کا عملی مظاہرہ دکھا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو افراط زر ہے، جب ہم گئے تھے تو سینسٹیو پرائز انڈیکس جو تھا، SPI جس کو کہتے ہیں، جو مہنگائی کا ایک پیمانہ ہے، وہ تھا 16.5%، اور آج ان چند ماہ میں وہ بڑھ کر ہو گیا ہے 38%۔ اور اب جو ڈالر اور جو تیل کی قیمتوں کا جو مہنگائی کا مزید طوفان آنا ہے، بجلی کے بلوں میں مزید جو طوفان آنا ہے، لوگوں کے سامنے ہے۔
डिफॉल्ट के जिम्मेदार कौन? ये कह देना कि तो वो जिम्मेदार थे, नकाफी है। आज सब लोग देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई रिकवरी प्लान नहीं है, कोई इकोनॉमिक रिकवरी का इस पास प्लान नहीं है। मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनमें कोई तसलसल नहीं है, एक कदम आगे दो कदम पीछे। मौजूदा हुकूमत की जो साख है वो बहुत मुतासर हो चुकी है, और उसका एक इशारा आपके सामने है कि जब बाहर भी किसी से बात करनी पड़ती है मुल्क के लिए रियायत लेने के लिए, तो बात कौन करती है? तो बात करते हैं वेंडी शर्मन से, डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट से। वो हमारे आगे चीज करते हैं। ये बात तो वजीर खारजा को करनी चाहिए, तो बिलावल को करनी चाहिए, ये तो शहबाज शरीफ को करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी साख अब इतनी गिर चुकी है कि कोई उनको तवज्जो नहीं दे रहा, उनकी बात में वजन और अहमियत नहीं रही। मैं कहता हूं कि इसलिए आज लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कैफियत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और आज लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तो सब पे खड़ा हो गया कि 4 जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं, अल्लाह न करे, जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं जो डिफॉल्ट कर सकती हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम दिया जा रहा है। तो मैं आज जो करना चाह रहा हूं वो ये है कि ये इलेक्शन, ये ज़िमनी इलेक्शन जिस तनाजुर में हो रहा है, पाकिस्तान के बादशाह शहरी और NA 157 के बादशाह शहरी को इस पर निगाह रखनी होगी। आज कैफियत ये है कि जब से पीपल्स पार्टी की और नून की मुश्तरका हुकूमत आई है, रुपए की कदर में 30% कमी हो गई है। जब हम हुकूमत छोड़ के गए तो डॉलर था 178 रुपए, 178 रुपए का $1 था। वो अब कुछ कम हुआ है कल, लेकिन 250 रुपए का डॉलर गया है, और अब भी जो शरह है उसकी खासी ऊंची है। जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो मईशत की सेहत के बारे में तबसरा करती हैं और रेटिंग देती हैं, जब हम हुकूमत में थे तो पाकिस्तान की मईशत के बारे में जो उनका तबसरा था, उनकी नजर में पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल थी। आज वही रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की नेगेटिव रेटिंग दे रही है। हम जब हुकूमत में थे तो मईशत 6% ग्रो कर रही। ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहता है, जो इस हुकूमत ने बजट देने से पहले शाया किया। हमारी जो स्टॉक मार्केट है आज इनकी 4 माह की, हमारी जो स्टॉक मार्केट है आज इनकी 4 माह की कारकर्दगी की वजह से लोगों के अरबों रुपए डूब गए, मुसलसल मंदा है वहां। जब हम हुकूमत में थे तो आपकी जो सनत है, इमरान खान साहब ने सनत को फरोग देने के लिए, मईशत को चलाने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए थे, और उन इंसेंटिव्स का नतीजा ये निकला था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, हाउसिंग सेक्टर को। उन इंसेंटिव्स का नतीजा ये निकला था कि आपकी इंडस्ट्री 36% उसकी ग्रोथ हो गई थी। आज जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है, वो ग्रोथ 36% से गिरकर 10% हो गई। आज आप फैसलाबाद जाइए और लोगों से पूछिए तो टेक्सटाइल सनत बंद होने को चली है। आज आपकी सीमेंट इंडस्ट्री बंद हो रही है, आज आपकी स्टील इंडस्ट्री दबाव में है। आज आपके बहुत से कारखानेदार लेबर को ले ऑफ कर रहे हैं, उनको मुलाजमतें दे नहीं रहे, ले रहे हैं उनसे। आज कैफियत ये है कि आपकी इंडस्ट्री इज ग्राइंडिंग टू ए हॉल्ट, और ये बहुत सीरियस बात है।
आज कैफियत ये है कि आपकी जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट है, एलसी जिसको कहते हैं, वो कारोबारी तबका खोल नहीं पा रहा। इतनी बेयकीनी है मार्केट में, अनसर्टिनिटी इस लेवल की है और करेंसी फ्लक्चुएशन इस लेवल की है कि एलसी नहीं खुल पा रही। आज कैफियत ये है कि जो जिंदगी बचाने की अद्वियात है वो मार्केट से गायब है और बहुत सी आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, जो लोकल भी है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही इसलिए कि रॉ मटेरियल दस्तयाब नहीं है। अपनी अद्वियात पैदा करने के लिए जो रॉ मटेरियल दरकार है वो अवेलेबल नहीं है। आज कैफियत ये है कि आपके ताजिर, और अब सारा मुल्तान का मीडिया बैठा है, आप कवर भी करते रहे, तमाम मुल्तान के ताजिर सराहा एहतजाज, वो बिजली के बिल दिखा रहे हैं और बिजली के बिल जला रहे हैं। आज वो कहते हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और ताजरों ने 17 अगस्त को शटर डाउन की कॉल दे रखी है, शटर डाउन की कॉल दे रखी है। आज ताजर जो है वो कह रहे हैं कि आपने हम पर जो फिक्स टैक्स बिजली के बिल और रिटेलर टैक्स जो लगा दिया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और लगाते वक्त आपने हमसे कोई मशावरत भी नहीं की। आज वो कह रहे हैं कि 2000 से लेकर 20,000 रुपया डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द शॉप आपने फिक्स टैक्स हमसे आयद कर दिया। चौक शाहबाज के ताजर तशरीफ लाए और उन्होंने दिखाया बिजली का बिल। उन्होंने कहा बिजली का बिल जो मुझे फिक्स टैक्स लगा है वो ज्यादा है और मेरी दुकान का किराया उससे कम है। मेरी दुकान का जो महीने का मैं किराया देता हूं वो इतने हजार है और जो मुझे बिजली का बिल फिक्स आया है वो 6,000 का है। तो मैं दुकान चलाऊं या दुकान बंद कर दूं, ये है कैफियत। वो कहते हैं कि छोटे दुकानदारों पर भी सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। कितने इंसेंटिव्स इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने दिए थे मुल्क की मईशत को किकस्टार्ट करने। चलता रहे, इन्होंने सब यके बाद दीगर उनको विड्रॉ कर लिया है। आज कैफियत ये है कि पिछले 2 दिन से पूरे पाकिस्तान में आज कैफियत ये है कि पिछले 2 दिन से पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने पहिया जाम किया हुआ है। मुल्तान के अड्डों से बसें नहीं चल रही। सब आपने देखा, आज भी अखबारात में मैं देख रहा था, तस्वीरें शाया हैं, सब बसें खड़ी हैं और सवारियों को कह रहे हैं कि आप तशरीफ मत लाइए क्योंकि हम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। आज वो कह रहे हैं कि हमारी वायबिलिटी नहीं रही। पहले 2 साल हमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को मार पड़ी, बंदिश हो गई, इंटरसिटी सफ़र पर पाबंदी थी, फिर पूरी सवारी नहीं ले सकते थे, फिर डीजल की कीमत इतनी चढ़ गई, फिर उसके ऊपर टोकन टैक्स और इनकम टैक्स हम पर इतना बढ़ा दिया गया, 200% बढ़ा दिया गया। इस बोझ तले ट्रांसपोर्ट चलाना नामुमकिन है। आज वो हड़ताल पर हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, इस तनाजुर में पाकिस्तान के लोगों ने एक मरतबा फिर 17 जुलाई के बाद एक बड़ा फैसला करना है। 2 बयानियां उनके सामने हैं और एक बयानिए का साथ देना है। 2 ऑप्शंस उनके सामने हैं। एक पीडीएम का ऑप्शन है और एक तहरीक इंसाफ का ऑप्शन है और लोगों ने उन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को तरजीह देनी है। आज मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो NA 157 का इलेक्शन है ये ज़ातियात का नहीं है, ये नज़रियात का इलेक्शन है। NA 157 के इलेक्शन में झगड़ा 2 खानदानों का नहीं है, इंसानों का है। इंसानियत की बात हो रही है। आज मैं ये कह रहा हूं, जब कौम और कौमी बका का सवाल उठता है
तो फिर कौम की बेटियों को, कौम की बहनों को और कौम की माँओं को अपना किरदार अदा करना होगा। वो लाताल्लुक़ रह नहीं सकती, वो इस माशरे का हिस्सा है, वो हमारे घर का हिस्सा है। और तहरीक इंसाफ की तहरीक में ख़वातीन का और फैमिलीज़ का बहुत बड़ा रोल है। चाहे धरना था 126 दिन का, चाहे 25 मई का हमारा एहतजाज था जिस पर हम पर तशद्दुद किया गया, हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने जो वह लाठियाँ खाईं, जो शेलिंग बर्दाश्त की, वो भी मेरी बच्चियाँ थीं, वो भी कौम की बच्चियाँ थीं। अगर वो खा सकती हैं तो हमारी बच्चियों को भी किरदार अदा करना होगा अगर पाकिस्तान का हमने मुस्तकबिल बनाना है। मैं अर्ज़ करता चलूँ, अब NA 157 के लोगों से मुल्तान का मीडिया तशरीफ़ फरमा है। मैं एक सवाल करता हूँ। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुरैशी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गवाह हो कि 2013 का इंतखाब था, ज़ैन ने, शाह महमूद ने, हमारे दोस्तों ने जो हमारे साथ चल रहे थे और चल रहे हैं और आज भी जिन्होंने मिलकर हमारे साथ दरख्वास्त जमा करवाई है, उनके हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा था, इमरान खान का नज़रिया था। 2018 का इंतखाब हुआ तो हमारे हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा था। ज़ैन कुरैशी ने दोनों पीपल्स पार्टी का और नून लीग का मुकाबला किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के के लोगों ने मेहरबानी फरमाते हुए इन्होंने उन्हें मुंतखब किया। इंशाअल्लाह जनरल इलेक्शन में भी आप हमारे हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा देखेंगे। जब एक कौम के सामने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपको अपनी सोच का अंदाज तब्दील करना होगा। आज पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो मामूली नहीं हैं, वो मामूल से हटकर हैं। आज पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों पर भी हमला हो रहा है, आज पाकिस्तान के जोग्राफिए पर भी हमला हो रहा है और आप देख रही हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अभी हालिया में कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिस पे अभी गवर्नमेंट खामोश है, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तो अर्ज करना होगा। इस पे पाकिस्तान की फैमिलीज़ को, हर शहर में पाकिस्तान के ख़ानदानों को, पूरे पूरे कुंबे को लाताल्लुक़ नहीं रह सकता, उसे अपना किरदार अदा करना होगा। मेरी नज़र में इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट देना पंजाब में वोट ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। कौन है जो पंजाब की सियासत पर नज़र रखे हुए है और नहीं जानता कि आज पंजाब में पीपल्स पार्टी की कैफियत ये है कि वो लंदन जाकर नवाज शरीफ से सीट एडजस्टमेंट की भीख मांग रहे हैं। ये अपने बेटे के लिए, मूसा के लिए, अपने दूसरे बेटे अब्दुल कादिर के लिए भीख मांग रहे हैं कि नून का कैंडिडेट ना खड़ा किया जाए और हमें ये सीटें दे दी जाएं। और अगर पीपल्स पार्टी का अपना नज़रिया है, दमखम है, तो उन्हें क्या घबराहट है। नून अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करे, PTI अपना कैंडिडेट खड़ा करे, फैसला तो आवाम ने करना है, फैसला तो आवाम ने करना है। और उनने इन तीनों प्लेटफॉर्म में से किसी प्लेटफॉर्म को चुनना है। आज कैफियत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का वजूद ख़त्म हो गया, ना होने के बराबर। पंजाब में अभी 20 हलकों में इलेक्शन हुआ है, एक हलके में भी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार नहीं था। मुकाबला किसका था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और नून लीग का। आज कैफियत यह, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी सिकुड़ गई है। गिलगित बल्तिस्तान एक ज़माने में उनका होल्ड होता था, आज उनका वजूद नहीं है। सो
واضح ہو گیا کہ اس وقت ملک میں دو آئیڈیالوجیز ہیں. ایک عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے اور ایک اس طبقے کی آئیڈیالوجی ہے جنہوں نے یہ سارا جو آپس میں الحاق کیا ہے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے نہیں، اپنی کرپشن کے کیسز کو دفن کرنے کے لیے کیا ہے. وہ 1100 ارب جو نیب کی زد میں تھا، جو 1100 ارب کے جو لوٹ مار ہے، جو نیب میں کیسز چل رہے تھے، ان کو دفتر داخل کرنے کے لیے نیب کے قوانین میں تبدیلی کی ہے. یہ ہے جن کا ایجنڈا، جس ایجنڈے کے لیے انہوں نے آپس میں نے پہلے بھی کہا تھا، نہ ان کا جھنڈا ایک، نہ ان کا نشان ایک، نہ ان کی سوچ ایک، نہ ان کا فلسفہ ایک، نہ ان کا منشور ایک. ہاں، ان کے وقتی مفادات ایک ہیں. میں آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ غیر فطری الائنس ہے، یہ ان نیچرل الائنس ہے، یہ دیرپا نہیں ہے. اور اس کی ایک جھلک سامنے آ گئی. آج ان کی اپنی نون کی صفحے میں سے لوگ جو ہیں این اے 157 کے، وہ ہرگز تیار نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے. ان کو سیریس ریزرویشنز ہیں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی سوچ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا وہاں ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. وہ فیصلہ ان کا ہے، ان کی قیادت نے بلا کر فیصلہ کر دیا ہے، اور ان کو بلا کر جو انہیں ہدایت دینی تھی وہ انہیں دے دی ہے. لیکن جو عام ووٹر ہے غالباً وہ اس ہدایت سے اتنا مجھے کم از کم مطمئن دکھائی نہیں دے رہا. تو میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پھر یہ گلی اور نالی تک محدود نہیں ہے. یہ الیکشن گلی، نالی، سڑک، پانی، بجلی، گیس، ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ روزمرہ کی ضروریات ہیں اور ان کو پورا کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے. لیکن یہ الیکشن اس سے بالاتر ہے. یہ الیکشن علاقائی گروپنگ سے بھی بالاتر ہے. یہ الیکشن گروہی پسند اور ناپسند سے بھی بالاتر ہے. اس لیے میں آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ووٹر ہے، جو فیصلہ کرنا چاہے، وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہے، لیکن وہ ترازو میں رکھ کے تولے اور تول کے فیصلہ کرے، کیونکہ یہ فیصلے کا وقت ہے اور اس فیصلے کی اس کی یہ بڑی اہمیت ہے. اس لیے میں کہوں گا این اے 157 کی بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو جو گھر بیٹھی ہیں، جو روزانہ کھیت میں جا کے کام کرتی ہیں اور ان کے بغیر زرعی معیشت چلتی نہیں ہے. چاول کاشت ہو رہا ہے، خواتین لگا رہی ہیں. کپاس کی چنائی ہوگی، خواتین چنیں گی. بھینسوں کا چارہ ہوگا، خواتین جا کے وہ کرتی ہیں، فوڈر کاٹتی ہیں اور چارہ کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں مال مویشی کی خاندان کے افراد کے ساتھ. گھر کے مسئلے، گھی کی قیمت کا جو احساس خاتون کو ہے وہ مرد کو نہیں ہو سکتا. اس لیے میں عرض کروں گا کہ پاکستان کی خواتین اور بالخصوص 157 کی خواتین، آپ کے پاس ایک بڑا فیصلے کا وقت آ رہا ہے اور آپ نے